हेलो ऑल, मैं हूँ चरवाक लोकायत और आज सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है बृहदारण्यक उपनिषद। तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये अराउंड 6th-7th सेंचुरी बीसी उस टाइम आया। उस टाइम इसकी रचना हुई। कुछ लोग इससे 8th सेंचुरी बीसी का भी बताते हैं, बट मेरा एस्टिमेट है ये 6th-7th सेंचुरी बीसी का क्लोज लगता है। तो उस टाइम बृहदारण्यक उपनिषद में जो जो हम पाए हैं, वॉट एवर इज द वर्स we are going to show it, and this Upanishad came into existence around 7th century BC, like that, close to that. Okay, I hope you like this video, share this video, comment on this video, subscribe the channel, hit the bell icon if you haven't, and also comment on it and let me know how you like this video. और बृहदारण्यक उपनिषद को दिखाने का यह है कि मैं एक सीरीज़ लाने वाला हूँ उपनिषद को लेकर, क्योंकि उपनिषद को लेकर बहुत एक हाई फेवर की बातें की जाती, उसको हम डिबंक करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। सो बृहदारण्यक उपनिषद फर्स्ट पार्ट वर्स 2, chapter 2 and verse 1. There was nothing whatsoever here in the beginning. It was covered only by death or hunger, for hunger is death. He created the mind, thinking, let me have a mind. He moved about worshipping himself. As he was worshipping, water was produced. So here you can see the first section, chapter 2, verse 1 of Bryhadaranyaka Upanishad. So people think Upanishad doesn't talk about creation theory, but here you have a creation theory, a creation hypothesis. Okay, so many Hindutva people who come online and say, oh, Hinduism doesn't have this creation theory, we are different from Abrahamic, they need to look at this verse. Okay, let me show another verse. Bryhadaranyaka Upanishad, section 1, chapter 2, verse 2. Water solidified and became this earth. When that was produced, he was tired. While he was thus tired and distressed, his essence or luster came, for this was fire. So here you see a very primitive thinking. Now whoever says Upanishad is scientific, there is science in Upanishad, they need to read this verse. Section 1, chapter 2, verse 2. उनको ये वर्स पढ़ना चाहिए कि क्या बता रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है जल जो है वो धरती बन जाता है, और धरती, और जब वो थक गया वो बंदा, उससे अग्नि निकलता है और उसने मन बना दिया। ऐसे ही आई मीन फ्रॉम नोवेयर दिस थिंग स्टार्ट्स टू कम। ओके, और यहाँ पे बृहदारण्यक उपनिषद सेक्शन 1 chapter 4 verse 1. Okay, in the beginning there was self alone in the shape of a person. He looking around saw nothing but his self. So again, these are all the creation theory you have in Bryhadaranyaka Upanishad. So to think that ours is not like Abrahamic and we don't have this concept of creator, created this thing, it's false. One needs to open even the Bryhadaranyaka Upanishad and read it. Okay, here you have a concept of Purush as a creator, or a Brahman as a creator, as the ultimate person, from him things come into existence. Okay, and let me continue into the next verse. Let me show this. Yeah, Bryhadaranyaka Upanishad, section 1, chapter 4, verse 3. But he felt no delight. Therefore a man who is lonely feels no delight. He wished for a second. He was so large as a man and wife together. He then made himself to fall into, and thence arose husband and wife. So again, this shows patriarchy. I mean, the ultimate being is a male. Okay, so from that male there is a split into two, a husband and a wife. That is what it is here. So again, how is it different from the concepts in things like Bible or Quran or something, anything like that? I am not saying this. These are there. I will give you the links. Go read the verse. I will even show the Hindi version of it. Okay, Hindi version is also there. I will show it.
Brihadaranyaka Upanishad, section 1, chapter 4, verse 4. She thought, how can he embrace me after having produced me from himself? I shall hide myself. She then became a cow, the other became a bull and embraced her, and hence cows were born. The one became a mare and the other a stallion. The one a male ass and the other a female ass. He embraced her, and hence one hoofed animal were born. The one became a she goat and the other a he goat, and one became a dove and the other a ram. He embraced her, and hence goats and sheep were born. And thus he created everything that exists in the pairs down to ants. So here is a very so-called scientific explanation of that time, okay, regarding how the pair exists, male and female. ओके आई मीन इट्स अब्सर्ड एंड पीपल सेल कि देर इज नो न्यू, ब्रह्मा ने जो है अपनी पुत्री के साथ संभोग नहीं किया, ये वही तो हो रहा है यहाँ पे। बृहदारण्यक उपनिषद सेक्शन 4 chapter 4 section 6 chapter 4 verse 18. He who wishes that a son should be born to him, who should be reputed scholar, frequenting the assemblies and speaking delightful words, who study all the Vedas, attain a full term of life, should have a rice cooked with the meat of vigorous bull, then he should be able to produce such a son. So if you want a very good son, intelligent son, knowledge in all the Vedas, you should cook rice with the meat of the bull and then eat it. Hence you can produce that type of son. Okay. So this is Brihadaranyaka Upanishad, Khand 6, chapter 4, verse 18. One can go out and check. And I am going to provide the links to all of these references. Then you have Brihadaranyaka Upanishad, section 6, chapter 4, verse 7. Here it talks about wife beating. If she is not willing, he should buy her over, and if she is still unyielding, he should strike her with a stick or with the hand and proceed uttering the following mantra: I take away your reputation, and she is then actually discredited. So here you can look at the shlokas in the Sanskrit above. Okay. So this is the issue here, okay? Wife beating. So if she is not willing, you try to please her, and if she is still not happy, then you should take her hand and hit her with a danda, okay, with a stick, okay, and thus taking away her reputation, as the verse say. Brihadaranyaka Upanishad, Khand 1, chapter 1, verse 1. The very first verse in this entire Upanishad is itself tells you about the thinking of those times people, and why people still consider this sacred, I don't know. Om, the head of sacrificial horse, is the dawn, its eye the sun, its vital force, the air its open mouth, the fire called Vaishnar, the body of the sacrificial horse is the ear, its back is heaven, its belly the sky, its hoof the earth, its sides the four quarters, its ribs the intermediate quarter, its members the season, blah blah blah, its liver and spleen the mountain, its hairs the herbs, and its forepart is the ascending sun, its hind part the descending sun, its yawning is lightning, its shaking the body is thundering, its making water is raining, its neighing is voice. So horse sacrifice used to happen during those times. Even the people who deny this should read this verse. So horses, a sacrificial horse is being imagined this way. बृहदारण्यक उपनिषद. एंड हियर हम आते हैं यहाँ पे हिंदी संस्करण पे. मैं ज़्यादा लंबा तो इसको नहीं करूँगा, लेकिन आप इसको पॉज करके संस्कृत में और हिंदी में पढ़ सकते हैं, और इसको पढ़ने के बाद आप आगे चेक कर सकते हैं यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा है. ये बहुत पुराना है और मैं इस सब का लिंक यहाँ पे शेयर कर दूँगा, ठीक है. सो हियर इट, ये जो यज्ञ में जो अश्व है उसी के चर्चा हो रही है कि उसका क्या है, ठीक है. मतलब काल के यज्ञ की सिद्धि नहीं है इस कारण, और यहाँ पे पूरा जो आप हिंदी में है आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये बहुत पुराना है और मैंने उससे ये फ़ोटो लेकर यहाँ पे डाला हूँ. तो आपको पॉज करके वीडियो पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा, टाइम ले करके, ठीक है. तो मैं यहाँ जितना हो सके ये हिंदी वाला संस्करण मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ.
मेरे को भी थोड़ा दिक्कत हो सकती है देख के पढ़ने में, बट आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं पूरी तरह। यहाँ पे जो यज्ञ में अश्वमेध जो है अश्व, उसी की चर्चा हो रही है, उसका जो स्वरूप है उसकी चर्चा हो रही है। तो ये उस टाइम के लोगों की ये सोच थी, हमें ये समझना होगा। लेकिन आज भी फिर बृहदारण्यक उपनिषद को क्यों कोट किया जाता है, क्यों मोटिवेशनल स्पीकर इसको लाते हैं, ये समझने वाली बात है। मोटिवेशनल स्पीकर जो है बृहदारण्यक उपनिषद को क्यों लाते हैं, तो और जो विश्व है वही विराट है, जो व्यष्टि है वही समष्टि है, वेद केवल छोटे बड़े का है, वास्तव में दोनों एक ही है। तो यहाँ पर अद्वैत सिद्धांत की बात हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे संस्कृत मंत्र है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और इसका हिंदी जो संस्करण है, भावार्थ जो है, पहले केवल एक आत्मा ही थी, वही पीछे के हिरण्यगर्भ होता भय, और वही, मतलब आप हिंदी में पढ़ सकते। मेरे को भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसके जो लेटर्स है वो क्लियर नहीं है, लेकिन आप इसको पॉज करके टाइम ले करके पढ़ सकते हैं। ये मैंने आपका जो भारत का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट में जो उपनिषद का जो हिंदी ट्रांसलेशन है, मैं वहाँ आपको यह दिखा रहा हूँ, ठीक है। और उन सब में भी आप यही चीज़ पाएंगे, ठीक है। और ये जो है आपका संस्कृत वर्ष है, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत पुराना है, 1907 का है, ये 1906 या 1907 उस टाइम का है। ये काफ़ी पुराना है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। बहुत मोर देन 100 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। हो सके तो ऐसे ही और भी उपनिषद का मैं एक एक करके दिखाऊंगा जो अनसाइंटिफिक और बेहुदा बातें हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को सबको ही पढ़ना चाहिए और इसको देखना चाहिए कि क्या क्या लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। प्रजापति जो है वो अपने ही बॉडी को स्प्लिट कर लेता है, हस्बैंड वाइफ बन जाता है, और दोनों जो है अलग अलग जानवर बन करके संभोग करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं अलग अलग जानवरों के। ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये उसी का कंटिन्यूएशन है जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अध्याय और जो संसर्ग है, जो पार्ट है, खंड है, उसका जो चैप्टर और उसका जो वर्ष है वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को इसी तरह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है एंड में, ताकि हमको पता चले और मैं ऐसे ही कंटेंट आपके सामने लाता रहूँ, ठीक है। तो और आके आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ने जाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि लेटर्स जो है वो उतना क्लियर नहीं दिखते, ठीक है। ये आपको समझने होंगे यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी पुराना है और ये रीसेंट भी नहीं लगता, तो इसलिए ये है। मैन्युस्क्रिप्ट से मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। जो पुरुष चाहे कि मेरा पुत्र विद्वान और महिष्मति हो, यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं, परन घृत डालकर दोनों सेवा करना चाहिए, चावल और मांस, उसको घृत समेत पकाकर खाना चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये बात हो रही है। तो जिसको आप बिरयानी बोलते हैं और लोग गाली देते हैं, उनको ज़रा यहाँ पे देखना चाहिए, ठीक है, ये मंत्र। और ये उसी सेक्शन 6 के चैप्टर 4 का वर्स 7 है, जिसमें वाइफ बीटिंग की चर्चा है, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे निकलते हैं और आगे और आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये सब चल रहा है, ओके। तो यहाँ पे भावार्थ भी है हिंदी में, ठीक है। हे सौम्य, शव और दिखलाने की है और स्त्री लक्ष्मी रूप नहीं। अच्छा, यहाँ पे लक्ष्मी रूप भी नहीं बोला गया स्त्री को। और नेक्स्ट क्या बोला गया यहाँ पे, अगर तू मेरी कामना को पूर्ण ना करेगी तो संतान करके जो यश स्त्री को होती है, उससे तेरे यश को अपने यश के साथ नष्ट कर दूंगा। मतलब धमकी दे रहा है यहाँ पे। और क्या बोल रहा है, उस स्त्री को दंड का भय दिखाकर अथवा हाथ से पकड़कर संभोक्त के ही
कहे सुंदरी। अच्छा, यहाँ पे इंटिमिडेशन की बात हो रही है। तो ये सब मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स है जो मैंने दिखा दिए हैं। मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, और कमेंट सेक्शन में मैं उस लिंक को भी पिन कर दूंगा। जिनको जाके पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ये मेरा अपना खुद का नहीं है, जो मुझे ऑफिशियल वेबसाइट से और जो ट्रांसलेशन जो पुराने हमको मिले हैं उससे जो प्राप्त हुआ है वही मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट कीजिए, और चैनल को ज़रूर दिखाइए, चैनल को ज़रूर शेयर करवाइए और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि सब्सक्रिप्शन 1000 तक पहुंच जाए तो और अच्छी बात होगी। जैसे ही चैनल का सब्सक्रिप्शन 1000 के ऊपर पहुंच जाएगा, मैं और ज़्यादा अच्छा लाइव कर सकता हूँ। ओके, थैंक्स एवरीबॉडी, बाय।